Hi everyone, welcome to channel Simple Concepts. I'm Rashmita and this is another lecture in our law optional lecture series. इसमें हम समझेंगे दो बहुत ही important legal maxims के बारे में जो कि law of torts में use होते हैं, that is injuria sine damnum and damnum sine injuria. So basically ये दोनों जो maxims हैं, this is based upon legal damages in torts, okay? That you will understand later that how they actually constitute legal damages in torts. So before coming to the lecture, there is this price hike alert on Unacademy. बहुत ही जल्दी Unacademy पे price बढ़ने वाला है. So you can enroll for it right now. You can subscribe for it right now, and you can use our code SIMPLEYT to get an extra 10% discount abhi. Also, here is this Unacademy Aspire. It is an all India free mock test for civil services aspirant for UPSC CSE prelims 2020 paper 1 GS. So ये जो exam है, this usually helps on 10th and 25th of every month. If you perform well, like if you get top 50 rank, then you can win exciting prizes and scholarship. So इसका जो next exam है, that is on 10th of October from 10 AM. तो आप इसके लिए भी enroll कर सकते हैं. इसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उसको क्लिक करके इसके लिए एनरोल कर सकते हैं. Also here are these three batches which are recently going to start on Unacademy. First one is Mission UPSC CSE 2021. It's a GS batch course, bilingual GS batch course. Second is Lakshya UPSC CSE 2021. It is in Hindi. Third one is Expedition UPSC CSE 2021. It's in English. Alright, so all of these three batches are going to start from 5th of October, and all three batches are for 1 year, and you will get every benefit that you might get when you subscribe for Unacademy in all of these three batches. Here are many benefits of joining Unacademy. So once you subscribe for Unacademy, you can learn live from the comfort of your home. You get unlimited access to all courses. You get top educators of India on one platform. You get exhaustive coverage of syllabus. You get regular doubt clearing sessions. You get live test series. You get study material in your PDF format. And also you get answer writing sessions and mentorship and guidance. So it's like a one-stop solution for your complete UPSC CSE preparation. You get structured batches with top educators. You get batches in Hindi, English and bilingual language. And you get late night as well as 2 years batches. You get 100% syllabus coverage. You get vast range of optionals. You get prelims test series with evaluation. You get mains test series with evaluation. You get dedicated doubt clearing classes, daily current affairs practice, essay and answer writing practice. You get performance analysis, section quizzes and your interview preparations. Also, you can use our code SIMPLEYT in order to get 10% extra discount. So suppose if you subscribe for 24 months, you have to pay rupees 64,000, and once you apply our code SIMPLEYT, then you have to only pay rupees 57,600. You can also attempt this daily quiz on current affairs daily at 7:30 PM. There are 20 questions. It's of 20 minutes and it's of 40 marks. Alright, so you can attempt it daily at 7:30 PM. Also, you can join any of the Unacademy's YouTube channel, which is Unacademy Articulate, Unacademy UPSC Current Affairs, Unacademy Lakshya UPSC CSE, Unacademy Expedition UPSC CSE, Unacademy Articulate, and UPSC Preparation by Unacademy. You can also join our Telegram group, which is Simple Concepts UPSC. We have already mentioned the link to the group in the description box, but you can also go to your Telegram app and type SIMPLE Simple Concepts UPSC and you will find the group. You can also contact us on this number 9689638048 if you have any query regarding how to apply a code, or you have any difficulty regarding anything related to Unacademy, then you can contact us on this number. So with this, let us get started with the lecture. Alright, so this is a little background. Okay, so basically हमारे ये जो दोनों मैगजीम्स है जिसके बारे में हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, they basically depend upon the legal damages. Alright, damages as in, see, damage has two meaning. Damage is that what the damage you have suffered, and damages in legal field or in particular in law of torts, damages मतलब the compensation that you will get. Alright, so whenever you see a word damages, that does not mean कि आपको कोई damage हुआ है.
That damages means that you actually have got this compensation. All right, so damages is equal to compensation. So in law of torts, an act is said to be a tort only if that particular act has violated a legal right or has done a legal injury to a party. So जब भी हम tort की बात करते हैं तो आप तभी कहेंगे कि एक टॉर्ट कॉन्स्टिट्यूट हुआ है जब किसी एक पार्टी का कोई लीगल राइट वायलेट हो रहा है. लीगल राइट वायलेट होने का मतलब है उसको लीगल इंजरी हो रही है. ऑलराइट, सो लीगल इंजरी कब होगी? तभी होगी जब आपने उसका कोई लीगल राइट जो उसके पास था और उसको वायलेट किया है. अगर आप उसका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं कर रहे हो, नो मैटर इफ ही सफर्ड सम डैमेज, ऑलराइट, बट इफ यू हैवंट एक्चुअली वायलेटेड हिज लीगल राइट, तो आपने उसको कोई इंजरी नहीं की है. सो डैमेज माइट नॉट बी देयर और नॉट might be there or not, but a legal injury to others should be present to constitute a tort. As I just told you कि legal injury plays a major role when you talk about tort. All right, tort तभी हुआ है जब legal injury हुई है. अगर legal injury present नहीं है, that means you have not committed any kind of tort. So the two maxims, injuria sine damnum and damnum sine injuria, is based on above given two principles. All right, so जो मैंने अभी आपको दो चीज़ें बताई हैं लीगल इंजरी के बारे में, इन्हीं चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है हमारे दो लीगल मैक्सिम्स जो हम इस पूरे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. So there are two types of torts which are actionable per se and those which are actionable only on proof of actual damage resulting from them. So basically जब हम torts में बात करते हैं, so there are two type of damages. All right, फर्स्ट इज बेसिकली विच आर एक्शनेबल पर से, मतलब उसमें आपको कोई डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है, आपको थोड़ा नुकसान हुआ है, ज़्यादा नुकसान हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आपकी लीगल इंजरी हुई है या आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है तो दे आर एक्शनेबल पर से. बस इतना ही दिखाना है आपको कि ये मेरा लीगल राइट था और ये वायलेट हुआ है, तभी के तभी टॉर्ट का जो केस है वो शुरू हो जाएगा. इट इज़ एक्शनेबल पर से, ये मतलब होता है एक्शनेबल पर से का. दूसरा टाइप का जो टॉर्ट हमारे पास अवेलेबल है लॉ ऑफ टॉर्ट में, दैट इज एक्शनेबल ओनली ऑन प्रूफ ऑफ एक्चुअल डैमेज. तो उसमें आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपको डैमेज हुआ है, आपने कुछ सफ़र किया है दूसरे के एक्शन की वजह से और आपको बहुत ही ह्यूज अमाउंट में डैमेज हुआ है और उस चीज़ की वजह से आप उससे कंपनसेशन मांग रहे हो. सो इन दिस टाइप ऑफ टॉर्ट यू हैव टू एक्चुअली शो टू द कोर्ट कि आपको ये सेवरल डैमेज हुआ है, ठीक है, या आपको ये नुकसान हुआ है. आप जब तक उसका प्रूफ नहीं दोगे तब तक वो एक्शनेबल नहीं होगा, मतलब उसके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा. सो दीज आर द टू टाइप ऑफ टॉर्ट दैट वी कम अक्रॉस. Thus, the act of trespassing is actionable even though the plaintiff has not suffered any harm. Similarly, a libel is actionable per se, while slander is not actionable without the proof of actual damage. So, इसमें इस वाले पैराग्राफ में बताया गया है कि एग्जाम्पल्स इसके जो मैंने अभी दो टाइप के टॉर्ट्स बताए, एक्शनेबल पर से एंड एक्शनेबल ओनली ऑन प्रूफ ऑफ एक्चुअल डैमेज. तो एक्शनेबल पर से का जो एग्जाम्पल है वो हो गया ट्रेसपासिंग, कि आपने ट्रेसपास किया, ठीक है, या आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने ट्रेसपासिंग की, भले ही आपको उससे कोई डैमेज नहीं हुआ है, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी को कोई इंजरी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ, बस वो आपके घर से निकल के चला गया, बट दिस वाज ट्रेसपासिंग एंड वंस दे एक्चुअली यू नो दे पास थ्रू योर हाउस, उन्होंने आपकी प्रॉपर्टी को ट्रेसपास किया है. दैट मीन्स आपका जो लीगल राइट है कि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर आपकी परमिशन के बिना कोई और नहीं चल सकता, उसको वॉयलेट किया है. सो दिस वॉज योर राइट, ऑल राइट, दिस वॉज योर लीगल राइट, वो वॉयलेट किया है. दैट मीन्स इट इज एक्शनेबल पर से. Second kind of tort is slander. So slander is a kind of defamation. So when we will talk about defamation, there are two kinds of defamation. One is libel, which is written, and this other one is slander. तो slander होता है जब हम orally किसी को defame करते हैं without publishing in written. So slander जो होता है उसके लिए you have to show the proof कि दूसरे के वर्ड्स की वजह से आपको कुछ डैमेज हुआ है या आपको भारी नुकसान हुआ है. जब आप कोर्ट को ये प्रूफ कर देंगे या कोई प्रूफ दे देंगे कि आपको दूसरे के कुछ बोलने की वजह से या उस डिफेमेशन की वजह से कुछ भारी नुकसान हुआ है, तभी उस बेसिक मतलब जो वो केस है वो आगे बढ़ेगा, मतलब तभी स्लैंडर का केस आपके ऊपर चलेगा. सो दिस इज द example of second kind of tort which is actionable only on proof of actual damage. I hope this is clear to you. Now let's come to the first maxim that we are going to talk about in this particular lecture.
दैट इज इंजूरिया सिने डैमनम. सो फर्स्ट लेट अस सी कि इसमें एक एक वर्ड का क्या मतलब होता है. सो इंजूरिया मीन्स इंजरी. हियर इंजरी सिग्निफाइज लीगल इंजरी. ऑलराइट, नॉट इंजरी जो आप एक्सीडेंट हो गया और आपको चोट लग गई, नॉट दैट इंजरी. वी आर टॉकिंग अबाउट द लीगल इंजरी हियर. ऑलराइट, साइने मीन्स विदाउट एंड डैमनम मीन्स डैमेज. सो इस पूरे के पूरे मैगजिम का मतलब क्या हुआ, इंजरी विदाउट डैमेज. तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि किस किस केस में आपको इंजरी हुई है लेकिन डैमेज नहीं हुआ, मतलब कोई सब्सिक्वेंट डैमेज नहीं हुआ है. जैसे अभी हमने ट्रेसपासिंग की बात की थी कि वो दूसरा इंसान आपकी प्रॉपर्टी से निकल के चला गया, आपको कोई हार्म नहीं हुआ, आपका घर टूट नहीं गया उससे, ठीक है. यू हैव नॉट सफर्ड एनी काइंड ऑफ डैमेज बट योर लीगल इंजरी, यू गॉट अ लीगल इंजरी बिकॉज आपका जो लीगल राइट था वो वॉयलेट हुआ है. ऑलराइट, सो दिस कम्स अंडर इंजरी without damage. So this maxim means violation of a legal right without causing any harm, loss or damage to the plaintiff. तो ये वाला जो maxim है ये उन केसेस पे अप्लाई होता है जिसमें आपने कोई डैमेज सफर नहीं किया है बट सिर्फ आपकी लीगल इंजरी हुई है, मतलब आपका जो राइट है, जो लीगल राइट है वो वॉयलेट हुआ है. Every injury imports damage. Infringement of private right is actionable per se. As we have already talked कि अगर आपको कोई इंजरी हुई है, अगर आपको कोई लीगल इंजरी हुई है तो नो मैटर आपने कोई डैमेज सफ़र किया है या नहीं किया, हम डैमेज की बात ही नहीं करते, ठीक है. हम सिर्फ ये देखेंगे लीगल इंजरी हुई है तो मतलब ये केस चलेगा, ये केस आगे बढ़ेगा. नो एक्चुअल लॉस और डैमेज इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड बाय द प्लेंटिफ. सो इस टाइप के केसेस में क्या होता है, जो प्लेंटिफ है जिसको इंजरी हुई है उसको कोर्ट को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि मैंने कोई डैमेज सफ़र किया है. वंस ही शोज टू द कोर्ट दैट ही हैज सफर्ड सम लीगल इंजरी एंड द कोर्ट इज ओके विद इट एंड देन द केस विल प्रोसीड अंडर द इंजूरिया सिने डैमनम प्रिंसिपल. सो इसका इस पर्टिकुलर मैगजिम का एक बहुत ही फेमस केस है विच इज एशबी वर्सेस White. Alright, so इसमें क्या हुआ था. So the plaintiff was a qualified voter at a parliamentary election, but the defendant, a returning officer, wrongfully refused to take plaintiff's vote. तो इसमें plaintiff था जो कि qualified voter था और जो defendant थे he was a returning officer. Alright, जो आपके votes collect करते हैं. तो उसमें returning officer ने क्या किया, उन्होंने मना कर दिया plaintiff का vote लेने से. उन्होंने कहा you are not qualified, I will not take your vote. Alright. So no loss was suffered by such refusal because the candidate from whom he wanted to vote won in spite of that. तो because इसमें plaintiff का वोट एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, जिसको plaintiff वोट करना चाहता था वो तब भी जीत गया कैंडिडेट. ऑलराइट, तो इसमें कोई सफ़र नहीं किया plaintiff ने, बट उसका जो लीगल राइट था वोट करने का. सो व्हेन यू वोट यू हैव अ लीगल राइट, ऑलराइट, दैट यू हैव राइट टू वोट. तो उसका जो पर्टिकुलर राइट था वो वॉयलेट हुआ. ऑलराइट, सो ही सफर्ड अ लीगल इंजरी. दैट्स वाई भले ही जिस कैंडिडेट को वोट करना चाहता था वो जीत गया और उसको कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो रिटर्निंग ऑफिसर था, जो डिफेंडेंट था, उसको लायबल माना गया. क्यों? क्योंकि उसने प्लेंटिफ को एक लीगल इंजरी की थी, ऑल्दो नो डैमेज वाज सफर्ड बाय द प्लेंटिफ. सो इसमें कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया, इसमें कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया every injury imports a damage though it does not cost a party one paisa, the damage being that the person is thereby hindered of his right. तो इसमें डैमेज किस चीज़ को माना जाता है, इसमें कोर्ट ने कहा कि भले ही एक पैसे का भी नुकसान नहीं हुआ है प्लेंटिफ को, बट ऐसे केसेस में हम ये देखते हैं कि क्योंकि वो जो लीगल राइट है उसको ही वो मतलब अपना एक्सरसाइज नहीं कर पाया है, दैट्स वाई वो ही अपने आप में एक डैमेज हो गया है उसको और उसको इंजरी हो गई है. So in cases of injurious sine damno, the loss suffered by the plaintiff may be relevant only as regards to the measure of damages. So जो भी हम देखते हैं, ठीक है, कि इनमें लॉस हुआ है या नहीं हुआ है या डैमेज सफ़र किया है या नहीं किया है, तो इन तरह के केसेस में सिर्फ डैमेज को किस लिए देखा जाता है, ये बताने के लिए कि कल को आपको कंपनसेशन कितना मिलेगा. जैसे इस केस में उसको कोई डैमेज नहीं हुआ था, उसको सिर्फ लीगल इंजरी हुई थी जिसकी वजह से डिफेंडेंट को लायबल माना गया, लेकिन ही सफर्ड नो लॉस. सो उसमें जो उसको कंपनसेशन मिलेगा इट विल बी क्वाइट लेस. अगर उसको कुछ बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ होता या बहुत ज़्यादा उसको नुकसान हुआ होता तब उसका देखा जाता कि उसको कितना नुकसान हुआ और उसके हिसाब से उसको कंपनसेशन पे किया जाता. सो इस तरीके के केसेस में सिर्फ
जो अमाउंट ऑफ डैमेज है या जो अमाउंट ऑफ लॉस है वो सिर्फ इसलिए देखा जाता है ताकि ये पता लगा जा सके कि उसको कितना कंपनसेशन पे किया जाना चाहिए. I hope this particular maxim is clear to you. Now next we are going to talk about damnum sine injuria. So ये वाला जो मैक्सिम है ये हमने जो अभी मैक्सिम पढ़ा है उसका जस्ट ऑपोजिट है. उसमें हमने पढ़ा था इंजरी विदाउट डैमेज और इसमें हम पढ़ेंगे डैमेज विदाउट इंजरी. So it means that plaintiff may suffer actual or substantial loss without violation of legal right and therefore no action lies in such cases. So इस तरह के केसेस में जिसमें डैमेज तो बहुत ज़्यादा हुआ है, आपने लॉस सफ़र किया है बट आपकी कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है, मतलब आपका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है, तो ऐसे केसेस में कोई एक्शन लाई नहीं करता, कोर्ट कोई भी एक्शन नहीं लेगा ऐसे केसेस में. This maxim is applicable in cases when the exercise of legal right by one results in consequential harm to the other even though the injury is intentional. Alright, so ये maxim उन cases पे applicable होता है जिसमें कोई अपना exercise right अपना जो right है उसको exercise कर रहा है और उस चीज़ की वजह से दूसरे को कोई loss हो गया है या कोई harm हो गया है, बट वो चाहे intentionally वो कर रहा है बट दूसरे को harm हो गया है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना कोई राइट जो है उसको एक्सरसाइज कर रही हूँ, ठीक है, एनी राइट, लाइक आई हैव अ राइट टू बिल्ड अ हाउस हियर, और उस चीज़ की वजह से क्योंकि मैंने यहाँ पे हाउस बनाया उस इंसान की गली ब्लॉक हो गई है साइड से, या उसका जो गार्डन एरिया था जो उसने मेरे वाले एरिया में बना रखा है वो नहीं बना सकता, ठीक है, तो उस वजह से क्या हो रहा है उसको हार्म हो रहा है, लेकिन इसमें मेरा कोई गलती नहीं है. ओके, यू अंडरस्टैंड. सो ऐसे केसेस में कोर्ट कोई एक्शन नहीं लेता बिकॉज आई एम माई सेल्फ एक्सरसाइजिंग माई राइट ओनली, आई एम नॉट इन्फ्रिंजिंग अदर पर्सन्स लीगल राइट. So the principle behind this kind of cases is it is important to carry on the common affairs of life without doing various things which are more or less likely to cause loss or inconvenience to other. So ये इस principle पे based है कि इट इज़ इम्पॉसिबल, लाइक बहुत ही मुश्किल है ऐसा होना कि आप अपना राइट एक्सरसाइज कर रहे हो और दूसरे को उससे इनकन्वीनियंस नहीं होगा. ऑल राइट, सो इसमें क्या होता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आती है कि मैं अपना राइट एक्सरसाइज कर रही हूँ तो किसी ना किसी को प्रॉब्लम हो ही जाएगी. मे बी समबडी इज जेलस ऑफ मी, मैंने 2 मंजिल घर बना लिया, सो विल बी लाइक मेरे घर पे धूप नहीं आती. ऑल राइट, सो ऐसे जो बहुत सारे कॉमन अफेयर्स हैं वो होते रहते हैं. अब अगर हर चीज़ के लिए केस डाला जाएगा सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द कोर्ट टू टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज हर चीज़ पॉसिबल नहीं है. So as long as I am exercising my right and I am not infringing anyone else's right, so I am not liable for any such damage. आप कब किसी डैमेज के लिए लाइबल होंगे? When you have done a legal injury to the other person. आपने दूसरे का लीगल राइट वायलेट किया है ना, तब आपको सज़ा होगी. लेकिन आप खुद का राइट अगर एक्सरसाइज कर रहे हो और उस चीज़ की वजह से किसी और को प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा बहुत उसको डैमेज हो रहा है लेकिन उसको कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है, तो यू कैन एक्सरसाइज योर राइट एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट. ऑल राइट, नो बडी विल केयर. सो इस केस में ऐसे टाइप के जो केसेस होते हैं उसमें 3 केसेस हैं जो कि आपको इम्पोर्टेंट पढ़ने हैं, विच इज़ ग्लाउचेस्टर ग्रामर स्कूल केस. इसके बारे में मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि इसमें एक स्कूल था, वो आराम से अपना बिजनेस चला रहा था, उसके बगल में ही एक और किसी ने आके स्कूल खोल लिया, उसने फ़ीस कम कर दी अपने स्कूल में बच्चों को लेने के लिए, तो जो पहले वाला स्कूल था उससे लोग निकल के और दूसरे वाले स्कूल में आने लगे. उस चीज़ की वजह से क्या हुआ, पहला वाला जो स्कूल था उसको बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ, ठीक है, उसके सारा पैसे का उसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ. लेकिन इसमें यही बोला गया बिकॉज द सेकेंड स्कूल जिसमें बच्चे चले गए बाद में, जिसकी फ़ीस कम थी, उसने कोई लीगल राइट वायलेट नहीं किया है पहले वाले स्कूल का, वो अपना स्कूल खोल रहा है, अपनी ज़मीन पे खोल रहा है, सब कुछ अपना कर रहा है. सो देर इज़ नो केस ऑफ टॉर्ट. ऑल राइट, बिकॉज देर इज़ ओनली डैमेज, देर इज़ नो लीगल इंजरी. सो ऑलवेज रिमेंबर जो इंजूरिया सिने डैमनो है उसमें हमेशा केस लाए करेगा. मतलब जब भी आपको लीगल इंजरी होगी तो कोर्ट आपका केस लेगा. अगर आपको लीगल इंजरी नहीं हुई है, यू हैव सफर्ड ओनली सम डैमेजेस, तो उसमें आपका कोई केस लाई नहीं करता है. दैट मीन्स जो हमने पहला मैगजीन पढ़ा है इंजूरिया सिने डैमनो, उसमें आपका केस लाई करेगा और डैमनेस सिने इंजूरिया में आपका कोई भी केस लाई नहीं करेगा.
So the next case is P Sitaramaiya versus Mahalakshma. तो इस केस में क्या हुआ था कि दोनों प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का घर था नदी के पास। तो प्लेंटिफ ने सॉरी या डिफेंडेंट ने क्या किया, डिफेंडेंट ने बिकॉज जब सी में पानी राइज होता है तो उनके घरों में पानी घुस जाता था। तो डिफेंडेंट ने क्या किया, अपने घर के बाहर एक फेंस लगा लिया, ठीक है, ताकि जो वो पानी है वो नदी का पानी ओवरफ्लो होकर उसके घर में ना जाए। उस चीज़ की वजह से क्या हुआ, वो पानी उनके घर में तो नहीं गया लेकिन उनके नेबर के घर में चला गया वो फेंस बनने की वजह से। तो उन्होंने केस डाल दिया कि इन्होंने फेंस बनाया, इस वजह से मेरे घर में पानी आया। तो इसमें कोर्ट ने यही बोला कि उनको पूरा राइट है, वो अपनी ज़मीन पे कुछ भी कर सकते हैं बिकॉज इट्स हिज लीगल राइट, ही इज exercising his own legal right and he has not infringed your any legal right. So इसमें जो प्लेंटिफ था उसको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिला बिकॉज वो भी अपने घर के बाहर फेंस बना सकते थे इफ ही वांट्स, ऑलराइट। तो जो डिफेंडेंट था ही वाज जस्ट एक्सरसाइजिंग हिज राइट्स। सो ये कोर्ट ने बोला। नाउ द थर्ड केस इज डिक्सन वर्सेस रूटर्स टेलीग्राम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इस केस में क्या हुआ, ए ने बी को एक टेलीग्राम भेजा कि जैसे कि हमारी डील हुई थी आप मुझे ये सारा सामान शिप कर दीजिए, या मतलब ये सारा सामान मुझे भेज दीजिए। अब क्या हुआ, वो एक टेलीग्राम कंपनी की वजह से वो मिसप्लेस हो गया, ठीक है, और वो बी के जगह पे वो सी को चला गया टेलीग्राम। अब सी ने क्या किया, सी को लगा अच्छा ठीक है कोई मुझसे गुड्स मांग रहा है, ठीक है मैं गुड्स भेज देता हूँ, उसकी भी खुद की एक कंपनी थी। तो सी ने क्या किया, सी ने ए को गुड्स भेज दिए उस टेलीग्राम की वजह से। अब ए ने जो है वो मना कर दिया गुड्स एक्सेप्ट करने से। क्यों, उसने बोला कि मुझे तो ये सामान चाहिए था जो बी के पास था, ठीक है, मैंने तो बी को टेलीग्राम भेजा था, अब वो सी को चला गया, अब इससे थोड़ी ना ये सामान ले लूँगा, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं। तो इस चीज़ के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर एक पूरा का पूरा केस चल गया था। तो उसमें क्या बोला गया कि सी के टूवर्ड्स, जो सी ने सामान भेजा था, सी के टूवर्ड्स ए कोई भी ड्यूटी लाई नहीं करती है। दैट मीन्स सी का कुछ भी लीगल इंजरी नहीं हुआ है, ही हैज़ जस्ट सफर्ड सम डैमेज, ठीक है, इट इज़ जस्ट द लाइक केयर, थोड़ा सा केयर नहीं था, दैट्स इट। सी हैज़ नॉट सफर्ड एनी लीगल इंजरी, सो दैट इज़ वाई सी को कोई भी कंपनसेशन इस केस में नहीं मिलेगा। सो ऑल दीज थ्री केसेस आर बेस्ड अपॉन द second maxim, that is damnum sine injuria. I hope you have understood both of the maxims carefully. Now in our next lecture we will talk about another legal maxims which are important from the perspective of your exam. So I'll see you all in the next video. Till then, take care and bye bye.